एक बार फिर से दुर्गापुर के काकसा में अजय नदी के ऊपर बना बांस का अस्थायी पुल लगातार बारिश की वजह से डूब चुका है। लोग जान हथेली पे लेकर नौका से आने जाने को मजबूर हो रहे हैं। भारी बारिश के कारण काकसा शिवपुर में अजय नदी पर बने बांस का पुल बंद हो गया है। नतीजा बीरभूम से पश्चिम बर्धमान आने जाने वाले यात्री परिसेवा भी बंद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने के कारण अजय नदी का जल स्तर बढ़ गया है। अजय नदी पर बना बांस का पुल डूब गया है और इससे यातायात बंद हो गया है। पुल की जगह पर नाव से जोखिम भरी यातायात शुरू की गई है। मंगलवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण काकसा शिवपुर अजय नदी में जल स्तर बढ़ गया है। नाव से पश्चिम बर्धमान और बीरभूम की यात्रा शुरू की गई है। आने जाने वाले लोगों का कहना है कि अजय नदी में पानी भर जाने से अस्थायी पुल जो बनाया गया था वो पानी में डूब जाता है। नतीजा आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पंचायत की तरफ से बांस के पुल बनाए जाते हैं लेकिन वो भी पानी में डूब जाते हैं। अब एकमात्र सहारा नौका है, मगर आर पार करने के लिए नाव पर काफी डर लगता है क्योंकि पानी अधिक रहता है और नाव पलटने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि पश्चिम बर्धमान उन्हें काम के लिए निकलना था, मगर बांस का पुल टूट जाने के कारण अब नाव पर ही उन्हें आना जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नदी का पुल डूब जाने के कारण नाव ही एकमात्र सहारा है और वो भी काफी देर से चल रही है। जब तक स्थायी पुल नहीं बन जाएगा तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। কি করে যাতায়াত করতে হবে এখন? নৌকাতে ওই মাথা ছিল, কি হয়েছে মাথাটা? মাথায় বান বেড়ে গেছে, মাথা ডুবে গেছে। মানে কবে থেকে মাথা বন্ধ? আজ এখন দিন কত- সাথে চলে গেছে। কতটা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে? বহুত সমস্যা। ব্রিজে কাজ এগোচ্ছে? ব্রিজে কই কাজ তো করছেই না কেউ। ওই তো চরম দুর্ভোগ। চরম মানে আমাদের বহুত কষ্ট। এই যে নৌকাতে যাচ্ছি, ধরুন মাথা যখন হচ্ছে মাথাতে যাচ্ছি, এইটাই কষ্ট আমাদের। আরে বৃষ্টিপাতের ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। কি নাম? স্বামীর তবে কি শেখ কোথায় যাবেন? এই জয়দেব। চলছিলাম মাথাটা ভেঙে যাইছে, নৌকায় গেছি আচ্ছা, মাথাটা কবে ভাঙলো? আজকেই তো আচ্ছা, এখন আবার কি, এখন কি করে যে করেছেন? আমি নৌকায় গেছি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? আমার ঘন্টাতেই হলো, 2 ঘন্টা আবার হলো। একজন 40 কি মাছ পড়ে গেল নৌকাতে, 40 কিলো। তাও পেরেছে না? হ্যাঁ তাও কোনো ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেই? না, ঠিকঠাক অবস্থা কই, ঠিকঠাক ব্যবস্থা নাই তো। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ বদিকুল, ভুজিসা বাড়ি। মাছ ব্যবসা করেন? হ্যাঁ, মাছ ব্যবসা করি। করবেন? এই নৌকার মাধ্যম দিয়ে করতে হচ্ছে এখন। মাচা করেছিল? আর মাচা করে দিল, মাচাতেও খুব দুষ্কর, কারণ বালিতে মানলে ঠেলে ঠেলে যাতা দুষ্কর, এখন তো অসম্ভব ব্যাপার। জলে ডুবে গেছে নাকি? মাচা ডুবে গেছে, আজকে প্রচন্ড বৃষ্টি। প্রচণ্ড বৃষ্টি। এটা কিসে দেখতে পাওয়া যাবে? কি করে পেরোবেন এখন? এখন নৌকাতে বেরোবো। চরম সমস্যা। দারুণ কষ্টর মাধ্যম দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পেরোতে হবে। জীবনে মানে দারুণ ঝুঁকি, মানে যাতা রিক্সের মাধ্যম দিয়ে। কেউ ব্যবস্থা নেয় না? হ্যাঁ, কেউ ব্যবস্থা নেয় না? না কি ব্যবস্থা নেবে? এটা আমরা ব্রিজটা করছে, কয়েক বছর ধরে ব্রিজটা করছে, কিন্তু ব্রিজটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করছে না। ইচ্ছা করলে তো আরও আগে করতে পারতো। কি নাম কিন্তু আপনার? দেখছে, হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম শেখ সামাউন। কাজে গেছিলেন? হ্যাঁ, কাজে গেছিলাম, ব্যবসা। এইটা পোল না হলে কোনোদিনই সমস্যা মিলবে না। নৌকা নিয়ে তো বহুত রিক্স। হচ্ছে এই মাচা হয়েছিল, মাচাটা ভেঙে গেছে। মাথা তো ভেঙে গেছে, সেটা কবে ভেঙেছে? হয়ে গেল মোটামুটি 4 সপ্তাহখানিক হয়ে গেল, মাথা ভেঙে গেছে। বৃষ্টিপাতের জন্য? বৃষ্টির জন্য ভেঙে গেছে। কি করে পারাপার করবেন আজ? এই যে নৌকা করে যেতে হচ্ছে রিক্সে। পেরোতেও তো পারছেন না। না, দাঁড়াতে হচ্ছে, কতক্ষণ সমস্যা। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? মোটামুটি দাঁড়িয়েছে হয়ে গেল প্রায় 15-20 মিনিট। ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেই? না, এখানে ঠিকঠাক ব্যবস্থা নেই। কি নাম? আমার নাম নেপাল। কোথায় যাবেন? নেপাল কি? আমি নেপাল বেরা। আমি ওই ইয়েতে যাবো, জয়দেবে যাবো, ওই পার। নৌকাতে মাচা করেছিল? মাথা করেছিল, জলে ডুবে গেছে। তো ভয় লাগবে না পেরোতে? হ্যাঁ, পেরোতে ভয় লাগে না? ওদের মাথাতে হ্যাঁ হ্যাঁ। না না, মাথাতে ভয় কি হয়েছে? মাথাতে কোনো ভয় নেই। এই নৌকাতে তো প্রচন্ড ভিড়। হ্যাঁ, ভিড় হলেও অসুবিধা হলেও পেতে মানে ব্রিজ হচ্ছে না? ব্রিজ হচ্ছে, দেরি হচ্ছে তো, কারণ জন্য অনেক মার হয়ে গেছে, আমার ঠিক মতো কাজ হচ্ছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? মোটামুটি 15 মিনিট ধরুন। তাও কিছু হচ্ছে না? আরো বাড়াতে আজকে বৃষ্টি পর্যন্ত লোকজন কম আছে। কি নাম? আমার নাম শেখ খেলাফত। কাজে গেছিলেন? কাজে দিই। दुर्गापुर से निवाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के
पंजाबी मोड़ स्थित नेशनल हाईवे 2 पर बने गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, हमारे चैनल की तरफ से इससे पहले भी कई बार सड़क की बदहाल स्थिति हमने दिखाई थी। रानीगंज के पंजाबी मोड़ से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की अवस्था काफी जर्जर है। कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे जान माल का खतरा अक्सर ही बना रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण बड़ी बड़ी गाड़ियां यहीं से गुजरती है। मालगाड़ियों के साथ साथ सवारी गाड़ियां भी इसी रास्ते से आती जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन गड्ढों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सड़क पर गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि बारिश के समय अगर लबालब पानी भरा हो तो बड़े बड़े वाहन इसकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। हालांकि 2 महीना पहले ही हमारे चैनल की तरफ से ये खबर दिखाया गया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली थी और उन गड्ढों की भराई की गई थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक तरफ। अब दूसरी तरफ स्थिति वैसे ही बन चुकी है। एक बार फिर से गड्ढों की स्थिति वही हो गई है। अगर आप पूरे तस्वीर पर गौर करें तो ऐसा नहीं लगता है कि सड़क पर गड्ढे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि गड्ढों पर सड़क बना है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारे खबर चलाने का मकसद बस एक ही है कि प्रशासन की नींद खुले और किसी तरह लोगों की जान बच सके। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बागुड़ा में महार संप्रदाय के लोगों ने एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग पर जिला शासक कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। महार संप्रदाय के लोगों का आरोप है कि राज्य के दूसरे जिले में महार संप्रदाय को एससी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि बांकुड़ा जिले में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है। दूसरे जिलों की तरह बांकुड़ा जिला में भी रहने वाले महार समाज के लोगों को अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन लोगों को नौकरी में मिलने वाले रिजर्वेशन को लेकर सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। मंगलवार बांकुड़ा के खातरा के रहने वाले महार संप्रदाय के लोगों ने बांकुड़ा जिला शासक कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बांकुड़ा जिला के खातरा इलाके के 5 गांव में एससी संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या करीबन 40,000 है। खातरा के अलावा झाड़ग्राम, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भी एससी संप्रदाय के लोग रहते हैं और यहाँ जाति प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, लेकिन बांकुड़ा जिला के रहने वाले 40,000 महार संप्रदाय के लोगों को अभी तक एससी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है। आंदोलनकारियों का दावा है कि पहले बांकुड़ा में भी महार संप्रदाय के लोगों को एससी के कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन बांकुड़ा जिला प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से इस संप्रदाय को एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। उनका कहना है कि महार संप्रदाय के लोगों का खुद का पैसा, संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज है, लेकिन इसके बावजूद भी बांकुड़ा जिला में महार संप्रदाय को ग्वाला जाति के साथ जोड़कर ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। आज के आंदोलन में महार संप्रदाय को दोबारा एससी कैटेगरी में शामिल करने की मांग पर आंदोलन किया गया। मंच থেকে দিচ্ছি আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার এইখানে আমাদের মূলত বাস মহার সম্প্রদায়ের, কিন্তু আমাদের পাশের জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ঢালাও সার্টিফিকেট আজকে বর্তমান দিনে এই সময় পর্যন্ত আমাদের সম্প্রদায়ের লোকেদের কিন্তু এসসি মানে তপশিলি জাতির শংসাপত্র দিচ্ছে, কিন্তু আমাদেরকে গহলা এবং যাদব জাতির সাথে তুলনা করে আমাদেরকে এই শংসাপত্র দেওয়ার থেকে বঞ্চিত করছে। কিন্তু আমাদের খাতড়া মহকুমাতে বিগত দিনে শংসাপত্র ছিল, সেই শংসাপত্র কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আমলারা তাদের এই সম্প্রদায় ওই যে গহলা এবং যাদব জাতির সাথে তুলনা করে আমাদেরকে কিন্তু এখান থেকে বঞ্চিত করছে, আর বিভিন্ন ধরনের অনভিপ্রেত তকমা দিয়ে আমাদেরকে এইখান থেকে মানে বিতাড়িত করার চেষ্টা চরিত্র চলছে। আমাদের সম্প্রদায়ের যারা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছে মহিলারা, যাদেরকে আমরা বৈবাহিক সূত্রে বিয়ে করে নিয়ে এসেছি, রাবণের মতো কোনো হরণ করে সীতাহরণ করে আনিনি, সেই মেয়েরা তাদের ভাইয়ের, তাদের বাবার, তাদের পিসির, তাদের দাদার, তাদের কাকুর শংসাপত্র নিয়ে আপনারা জানেন যেভাবে যে ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করে শংসাপত্র পাওয়া যায়, সেই শংসাপত্র নেওয়ার জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করেছে, কিন্তু আমাদের যখন দিতে যাচ্ছে তখন বিতাড়িত করছে বিসিডাব্লিউ অফিসাররা। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি চলছে, সেইখানেও আমাদেরকে কিন্তু বঞ্চিত করা হচ্ছে। তো এই আজকে ডিএম ডেপুটেশনের পর যদি আমাদের দাবি না মানা হয়,
আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকব। কারণ এখানে আমাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমরা এই লড়াই সংগ্রাম করছি। এই সংগ্রাম কিন্তু চলবে। 2008 সাল থেকে শুরু করেছি, আজও আমরা এই সংগ্রামের পথে আছি। আপনার নাম? আমার নাম আশিস কুমার বাগাল। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के बीबी कॉलेज में बच्चों को कोडिंग प्रशिक्षण देने के विषय पर बैठक की गई। इस दौरान कहा गया कि आधुनिक युग में तकनीक बढ़ रही है, इसलिए बच्चों को कोडिंग की शिक्षा देना भी जरूरी है। आसनसोल स्थित बीबी कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय में सभी बच्चों को कोडिंग विषय पर विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए एक बैठक की गई। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अमिताभ बसु, डॉक्टर परिमर घोष, डॉक्टर संजीव पांडे, डॉक्टर चंचल कुमार विश्वास उपस्थित थे। श्री पांडे ने बताया कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से सूचना प्रसार पद्धति की तकनीकी प्रौद्योगिकी बढ़ रही है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसमें आसनसोल के सभी बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को कोडिंग प्रौद्योगिकी की जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप बच्चे कोडिंग के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्मूला के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। साथ ही वेब पेज में उपयोग होने वाले कोडिंग की जानकारी लेकर उसका बेहतर निर्माण कर सकते हैं। कॉलेज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग की जानकारी देने की सुविधा दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहन किया जाएगा। कोडिंग जानने के लिए C++, जावा में प्रोग्रामिंग भाषा की जानकारी होना जरूरी है। इससे आसान प्रोग्रामिंग पाइथन है, जिसे बच्चे बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे और उन्हें कोडिंग का उपयोग कर पाएंगे। वर्तमान समय में ऑनलाइन माध्यम से नेट पर Amazon, YouTube में जो वेब पेज आते हैं उनके कोडिंग का ही उपयोग होता है और आर्मी सहित खुफिया विभाग में कोडिंग के माध्यम से ही सभी प्रकार के संदेश भेजे जाते हैं। इसलिए कॉलेज में बच्चों को विशेष रूप से कोडिंग सिखाने पर जोर दिया जाएगा, जिसे लेकर बैठक की गई है। के लिए जो कोडिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है, कोडिंग सीखने के लिए, इस विषय पे क्या डिस्कशन हुई आज? इसमें यही डिस्कस हुआ कि अभी जो आने वाले ज़माने में भविष्य में ये कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये इतना ज़्यादा फेमस होने जा रहा है और हर किसी की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल रहेगा। इस वजह से आने वाले समय के लिए तैयारी करने के लिए बच्चों का कोडिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस करके इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम लोग इस बात के लिए प्रोत्साहित करें बच्चों को कि वो हर जो गार्जियन है अपने बच्चे को कोडिंग सीखने के लिए कहीं ना कहीं वो एडमिशन कराएं, सिखाएं, ताकि आने वाले समय में उनको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये ऐसा एक चीज़ होने जा रहा है कोडिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर किसी काम में इसका आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, कोडिंग करने से किस प्रकार की कोडिंग की व्यवस्था इसमें होगी, मतलब किस इसमें तो शुरुआत वो प्रोग्रामिंग सीखने से करेंगे, जैसे कि C++, जावा, ये सब जो है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये कठिन हो सकता है। आसान, अभी सबसे अच्छा आसान प्रोग्रामिंग सीखने का है पाइथन, सीख सकते हैं। इसका लैंग्वेज थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली। तो और पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जानने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए या मशीन लर्निंग, इसमें क्या होता है आप देखे होंगे कि आप कभी जब यूट्यूब या किसी गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसी तरह का चीज़ आपको बार बार आने लगता है। वो जो आप देखेंगे, अगर जूता का आप कोई सपोज अमेज़न में आप जूता का ये देख रहे हैं कि जो कौन सा जूता खरीदेंगे, तो आपके व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक का जो पेज है उसमें देखिएगा जूता का ही ये आने लगेगा। अमेज़न को जो ऐड आएगा उसमें जूता ही आपको, तो वो कैसे कर रहा है? वो भी भीतर ही भीतर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन लर्निंग, एक रिपीटेशन, जो आपका जो देखने का जो ये है कि बार बार आप क्या देखते हैं उसी चीज़ को लोग फिल्टर कर लेता है। इसके पीछे कोडिंग है। तो इस तरह की चीज़ें जो आने भविष्य में हर चीज़ के बारे में, जैसे हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बांग्ला में कन्वर्ट कर देगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट रियल टाइम आप उसी लैंग्वेज में सुनेंगे। अच्छा, कॉलेज में बच्चों को क्या कोडिंग की व्यवस्था की जाएगी सिखाने की? इसके बारे में कॉलेज में ऑलरेडी कुछ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यहाँ पर है, कंप्यूटर साइंस सेक्शन में वो लोग ऑलरेडी तरह तरह का प्रोग्राम सीखता है और BCA डिपार्टमेंट में भी है। और कॉलेज अभी सोच रहे हैं, हम लोग एक तो सर्टिफिकेट कोर्स करने के बारे में इसमें सोचे हैं कि ये R प्रोग्रामिंग बोल के एक प्रोग्रामिंग होता है, R, पाइथन और R, और हम लोग स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ करके एक सर्टिफिकेट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बर्धमान जिला यातायात पुलिस विभाग के सड़क दुर्घटना करने के प्रति सतर्कता केवल प्रचार अभियान में ही देखने को मिलती है। मंगलवार को एक बार फिर इसका नमूना देखने को मिला। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक बाइक पर सवार एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। पश्चिम बर्धमान जिला यातायात पुलिस विभाग के सड़क दुर्घटना कम करने के प्रति सतर्कता केवल प्रचार अभियान में ही देखने को मिल रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ अलग ही बयां कर रही है।
यातायात पुलिस जिला में दुर्घटना के आंकड़ों में कमी का कई दावा कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के कल्ला मोड़ से काली पहाड़ी मोड़, जो वर्तमान में एक्सीडेंटल जोन में तब्दील हो गया है, इस क्षेत्र में दुर्घटना पर काबू पाने में असफल साबित हुई है। अभी काली पहाड़ी मोड़ पर एक दुर्घटना के हुए 15 दिन भी नहीं बीते हैं कि मंगलवार को एक बार फिर से एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए, जबकि उस परिवार को अपने एक पुत्र को खो देना पड़ा। काली पहाड़ी मोड़ पर बार बार हो रहे दुर्घटनाओं के कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार को आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर एक बाइक पर सवार होकर एक परिवार दुर्गापुर से आसनसोल की तरफ आ रहा था। एक टेलर रानीगंज की तरफ जा रहा था। इसी क्रम में ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 13 वर्षीय त्रिशान बाध्यकर की मौत हो गई, जबकि प्रवीर बाध्यकर, शांति बाध्यकर और 4 वर्षीय विराट बाध्यकर जिला अस्पताल में चिकित्सारत है। वह लोग दुर्गापुर से आसनसोल की तरफ आने के क्रम में हादसे का शिकार हो गए। हादसे को लेकर यहां भारी हंगामा पसर गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि हादसे से नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा और पथराव और तोड़फोड़ भी किया। ट्रैफिक गार्ड कार्यालय में तोड़फोड़ किया गया। उत्तेजित जनता ने ट्रैफिक पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रैफिक पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ कर डाला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पथ अवरोध को हटाया गया। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया और इनका सीधा आरोप था कि हाईवे पर पुलिस अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरतती है, तभी ऐसे हादसे होते हैं। स्थानीय लोगों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस दौरान आक्रोशित जनता द्वारा पुलिस कैंप में भी हमला किया गया। स्थानीय नागरिक एसके सिंह ने कहा कि एक बाइक पर सवार एक परिवार के 4 लोग तेज गति से जा रही ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिसके कारण पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा घायल हो गया, जबकि एक 13 साल का बच्चा घटनास्थल पर ही मारा गया। जल्द ही ऐसे सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। इंडियन गैस टैंकर যাচ্ছিল আর একটা মোটরসাইকেল একটা ফ্যামিলি আসছিলেন, দিয়ে এই বাইপাস রোডে ট্যাঙ্কারটা ফ্যামিলিকে ধাক্কা মারার পর তারা সেই ফ্যামিলি পুরো ইনজোর্ড হয়ে যায়। একটা বাচ্চা ছেলে বোধহয় মারা গেছে, সেটা কনফার্ম করবে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ। আমরা হসপিটালে সবাইকে পাঠিয়েছি। আমরা তার বিরোধিতায় আজকে বাইপাস জাম করেছি যে সব সময় কালীপাড়ি মোড়ে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কেন। আজকে ডেটে কালীপাড়ি মোড়ে সবচেয়ে বেশি, এই এলাকাতে সবচেয়ে বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কালীপাড়ি মোড়ে, যেটাকে রোকার জন্য প্রশাসন কোনো কিছু করছে না। আমরা বারবার দেখছি, এর আগে 29 তারিখে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তেলের ট্যাঙ্কার একটা মিনি বাসকে মারলো। সেই মিনি বাসের ড্রাইভার থেকে নিয়ে প্যাসেঞ্জার অবধি প্রায় 10-15 জন হেভি ইনজুরি ছিল, 2 জন পুরো সিরিয়াস ছিলেন। সবাইকে আমরা হসপিটাল নিয়ে গেলাম। আমরা কি সবসময় অ্যাক্সিডেন্ট সামলাবো? এইটাকে আটকানোর জন্য আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে যে প্রশাসন তাড়াতাড়ি এই ম্যাটারগুলো দেখুক, যাতে কালীবাড়ি মোড়ে অ্যাক্সিডেন্টগুলো বন্ধ হোক। কি বলছেন, এখানে ট্রাফিক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এরকম কেন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে? এখানে দেখুন বাইপাস আছে, বাইপাসে এখন মেন বাইপাসটা এখন অবধি চালু হয়নি। সেই বাইপাসটা যতক্ষণ চালু হচ্ছে না, একটু অসুবিধা এখানে থাকবে, কিন্তু সেই অসুবিধাকে কী করে ঠিক করে যায় প্রশাসনকে একটু ঠিক করতে হবে। আজকে আপনারা অবরোধ করেছেন, কিছু ভাঙচুরও হয়েছে, কেন? দেখুন, একটা হিট অফ দ্য মোমেন্টে একটা বাচ্চার রক্ত মানুষ দেখেছে। সেই রক্ত দেখার পর পাবলিক নিজের সেন্টিমেন্ট, নিজের আবেগকে আটকাতে পারলো না। সেই হিট অফ দ্য মোমেন্টে পাবলিক রাস্তা জাম করেছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।